کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الأخلاق والموازین والصلاة والسلام علی من كان نبيا وبين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم۔ شمع رسالت کی پروانوں جگہ گوشے عاملہ کی عاشقوں والے ترغیب و نبوات آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے دور اول کی آئیے اس مال و کمال قادر کل کا مطلع ذات و صفات رب العالمین کا خلیفہ اعظم خالق کونین کا نائب اکبر خزائن السماوات والارض کا مالک و مختار ملکوت و ملک کا تاجدار نبی سے بے قرار نبیوں کے تاجدار جن و بشر کے سردار صاحب اقتدار نائب پروردگار دعائے خلیل تمنائے کلیم بشارت مسیح جگر گوش عبداللہ نوردین یامینہ سیدنا و شفیعنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ نازل میں خلوص و محبت کے ساتھ ہدیۃ السلام پیش کرنے کی سعادت سے حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ اللہ کا ذکر سننے کے لیے اللہ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک آج اس محفل کی سرپرستی و صدارت خطیب و امام حضرت الحاج حافظ القاری خلیفہ شیخ الاسلام محفوظ احمد شفیع صاحب فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کر کے آج اس محفل کا اختتام کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے۔ ان راتوں میں اگر دیکھیں تو آج بھی بڑی رات ہے، جیسے شب جمعہ ہے۔ جمعہ ہفتے کا عید ہوتا ہے، آج اس کی شب ہے۔ اور اگر مہینے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مہینہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، بے شک سبحان اللہ، یعنی 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ بے شک بڑے عنایت اور قدر شناس وفادار ماں باپ کا فرمانبردار بیٹے جناب محمد انور صاحب جنہوں نے اپنے والد مرحوم عبدالکریم خان صاحب کی آپ کی سارے سوال کی محفل کا اہتمام کیا، آپ سب کو یہاں پر مدعو کیا۔ آپ تمامی حضرات قلب کے گہرائی سے ان کے والد محترم مرحوم کی حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علی رحمت فرمائے اور کروٹ جنت عطا فرمائے، آمین آمین اللہم مرحوم کی بخشش فرمائے اور آمین۔ ایک اچھے اولاد کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے مرحوم کو اس کا بہت عنایتیں احسانات ہیں زندگی پر، ان کو وقتاً فوقتاً یاد کیا جائے اور حتی الامکان کوشش کی جائے ان کو فائدہ پہنچانے کی۔ بے شک اس لیے کہ ہم اور آپ جب تک کہ اس زمین کے اوپر چلتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تب تک ہمیں فائدہ ملتا رہتا ہے، اور جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے، روح قفس وصول سے پرواز کر جاتی ہے، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے،
کہ مرحوم محتاج ہو جاتا ہے. مرحوم کی مثال ڈوبتے تنکے کی طرح ہے. اگر اسے کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو اس ایصال ثواب کا فائدہ اسے ملتا ہے اور وہ مسرور بھی ہوتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے. بے شک. انہیں میں سے آج اس محفل کا انعقاد بھی ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے, آمین, اور اس محفل کے صدقے تو خیر سے مرحوم کی بخشش فرمائے. آمین. میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت سے اپنے مشرف کو محسوس کیا, بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آزمائیں گے برائی اور بھلائی سے جانچ کے لیے. یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ انسان کی پیدائش صرف اور صرف زندگی گزار کر چلے جانے کے لیے نہیں ہوئی, بلکہ اس زندگی کا حساب بھی دینا ہے اور اس زندگی کی جانچ بھی کی جائے. بے شک. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو عمل کے اعتبار سے جانچے کہ بہتر کون ہے. لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے. بے شک. اس سے بھی پتہ چلا کہ اس زندگی کا بعد ہمیں ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے اس زندگی کے حوالے سے کہ تم نے اپنی اس زندگی میں کیا کیا ہے. ان آیات طیبات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان آزاد نہیں ہے. جتنی سالہ زندگی اسے عطا کی گئی ہے ان کا اسے حساب بھی دینا ہے. ہم اس مذہب مہذب میں رہتے ہیں جس مذہب کا یہ تصور ہے کہ اس کے بعد ایک زندگی ہے جس زندگی میں پھر فنا نہیں ہے, جس زندگی میں پھر موت نہیں ہے. مومنین کو اسی زندگی کی تیاری کرنا چاہیے جو ہمیشہ کی جسے حاصل ہے, جسے ختم نہیں ہونا ہے. ابھی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی تو چلو روزہ ہے, اسے اس طرح سے گزارنے کے لیے کہا گیا جیسے ایک مسافر چلتا ہے, اپنے منزل کی طرف جاتا ہے, راستے میں تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, پھر آگے بڑھ جاتا ہے. جہاں آرام کرتا ہے اسے قیام گاہ یا وہاں رہنے کے لیے ہمیشہ نہیں سمجھتا کہ میں یہاں رہ جاؤں گا, بلکہ اسے فکر ہوتی ہے اپنے منزل کی. تھکان جیسی ختم ہوئی اپنے منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہماری زندگی ایک مسافرانہ زندگی ہے. ہم سفر کر رہے ہیں اور ہماری نگاہ اسی منزل کی طرف ہونا چاہیے جسے آخرت کہا جاتا ہے.
جائے مومن کو اسی تصور کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گود تک اور قبر کے گود سے لے کر کے حشر تک سفر میں ہیں۔ اللہ کی مرضی کہ اللہ نے جب تک جہاں چاہا، جب تک چاہا رکھا، اس کی مرضی جب ہوئی حکم ہوگا، جگہ بدل گئی، جب تک جہاں چاہا وہاں رکھا، پھر حکم ہوا، پھر جگہ بدل گئی۔ فار ایگزامپل ہم لوگ سب کہاں تھے؟ عالم ارواح میں۔ وہاں سے باپ کے سرد میں آئے، باپ کے سرد سے ماں کے رحم میں آئے، ایک زمانہ وہاں بھی گزرا، ماں کے رحم سے ہم زمین پر آئے، ایک زمانہ یہاں بھی گزرا، زمین سے پھر ہم قبر میں چلے گئے، ایک زمانہ وہاں بھی گزرے گا، اور قبر سے پھر اٹھائے جائیں گے، حشر میں پہنچیں گے، اور پھر حشر میں حساب و کتاب کے بعد اللہ جو ہمیں جگہ عطا کرے گا، اس جگہ پہ ہمیں پہنچا دے گا، اور پھر وہاں ہمیشہ رہنا۔ تو گویا ہمیں قرار یہاں کہیں بھی نہیں، نہ باپ کے سلو میں قرار ہمیشہ کی، نہ ماں کے رحم میں ہمیشہ کی، نہ دنیا میں ہمیشہ کی، نہ قبر میں ہمیشہ کی۔ ہمیشہ کی کہاں ہے؟ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دو جگہ بتایا، جنت اور جہنم۔ بے شک آپ جس لائق بنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں بھیج دیا، اور جب جنتی جنت میں پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے زیادہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ زیادہ کیا ہے، بھلائی کیا ہے؟ اچھائی کرنے والوں کے لیے اچھائی، یعنی جس نے نیکیاں کی، دنیا میں زندگی بہترین گزاری، خیر کا کام کیا، عمل صالح والی زندگی گزاری، اللہ نے اس بھلائی کے بدلے میں کیا دیا؟ جنت۔ اس بھلائی کے بدلے میں کیا دیا؟ جنت۔ اور جب جنت میں بندہ پہنچ جائے گا تو پھر اس سے بہتر کوئی جگہ تو دیکھا ہی نہیں تھا، نہ کہیں جانے کا اسے خواہش ہوگی، نہ کسی اور طرف دیکھنے کی اس کی آرزو ہوگی۔ جنت میں پہنچ جانے کے بعد اس کو سارے آرام و آشائش کی زندگی مہیا کر دی جائے گی، پھر وہ کس چیز کی خواہش اور تلاشی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندو، اے جنتیوں، تمہیں اس سے بھی زیادہ کچھ دیا جائے۔ جنتی کہیں گے اے اللہ، تم نے ہمارے چہرے کو سفید کر دیا، تو نے ہمیں جنت عطا کر دی، تو نے ہمیں دوزخ سے نجات دے دیا، اور کیا زیادہ چاہیے؟ یہ جنت ہے جس میں خواہش کرو تو مل جائے۔ اللہ کا ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت وہ ہے تو تمہارے تم جو چاہو تمہارے لیے وہ حاصل۔ جنت اتنی بڑی ہے جس کے وسعت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے ارضها السماوات والارض، یعنی جنت کی وسعت اگر آپ اپنے دماغ یا ذہن کے اعتبار
ذہن کے جو قریب ہے اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جنت کی وسعت زمین و آسمان کو ملا کر کے دیکھو کہ کتنی وسیع ہوگی، اتنی بڑی جنت ہے۔ اور یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، اس سے بھی بڑی جنت ہے۔ آسمان و زمین کو اگر بچھا دیا جائے، اس سے بھی بڑی جنت۔ یہ تو صرف انسان دیکھتا ہے، آسمان و زمین کو تو سمجھانے کے لیے کہا والسماوات والارض، آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر بھی برابر جنت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی جنت۔ تو جنت اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے اور تمہیں زیادہ عطا کروں، تو جنتی کہیں گے مولا یہ تو عطا کر دیا، اتنی خوبصورت جگہ عطا کر دیا، اور کیسا دینا چاہتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پردہ حجاب اٹھ جائے گا، حجاب کیا ہوگا؟ اٹھ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، اپنا دیدار عطا کرے گا۔ جیسے ہی جنتی خدائے وحدہ لا شریک کو دیکھیں گے، جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اس سے بڑا انعام تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ خدا جسے اپنا دیدار عطا کر دے، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا انعام تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے عزیزو، للذین احسنوا فزیادہ کی تفسیر یہی ہے کہ بھلائی کے بدلے میں بھلائی تو ہے، اچھائی کے بدلے میں اچھائی ہے، اور اس سے زیادہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے عزیزو، جب اس دنیا میں کام اچھے ہوں گے، جب اس دنیا میں بھلائی کی زندگی گزرے گی، بھلائی والے کام ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جنت کے علاوہ اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے، اس کے انتقال سے پہلے فرشتے آتے ہیں، ایک دو فرشتے نہیں بلکہ اتنے سارے فرشتے آتے ہیں کہ دور دور تک وہ بیٹھ جاتے ہیں، جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، ملک الموت ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے، ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، فوراً ان سے دوسرے فرشتے اس روح کو لے لیتے ہیں اور جنتی کفن میں دفناتے ہیں، خوشبو بھی لے کے آتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم اصل رہا، اس خوشبو میں بساتے ہیں اسے، اور پوری جماعت اس روح کو لے کر کے ملائے اعلیٰ کی طرف چلتی ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کون ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ فلاں ہے۔ جو اس کا نام زمین پہ ہوتا بہتر، اس نام سے کہتے ہیں فلاں ہی روح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام، اس کی کتاب علیین میں لکھ دو، اور اس کو واپس لے جاؤ، جو کہ اس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے اسی مٹی میں واپس کر دو، اور پھر اس کو مٹی سے میں پھر اٹھاؤں گا۔ ایک بندہ ایک مومن کی تقریب دیکھو، اس کی شان دیکھو، اس کی عظمت دیکھو، آسانی سے روح بھی نکالی جاتی ہے، جنتی کفن میں دفنایا بھی جاتا ہے، جنتی خوشبو بھی عطا کی جاتی ہے، خوشبو کو بسا کر کے فرشتوں کی طرف چلتے ہیں، فرشتے جب لے کے جاتے ہیں فرشتے اس کا استقبال بھی کرتے ہیں، بارگاہ مولا میں حاضر ہوتے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا کتاب علیین والوں میں لکھو اور اس کو واپس لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے واپس لے کے آتے ہیں قبر میں جہاں یہ دفنایا جانا ہے، اس کی روح کو واپس کرتے ہیں اس کے جسم میں، اور پھر سوال کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں رب کون ہے، مادین کا تیرا دین کیا ہے، تو شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا جو تمہارے بیچ میں بھیجا گیا تھا؟ مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یا مولا ہمارے نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا سننے کے بعد ایک آواز آتی ہے آسمان سے کہ اس بندے نے صحیح کہا ہے، اس کے لیے
जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो और से कहो ये सो जाए जैसे दुल्हन सोती है, अब इसे कोई नहीं उठाएगा, यानी इसे आराम करने दो। ये मोमिन की शान होती है कि जब बंदा ईमान के साथ जाता है, बंदे मोमिन की जब रूह कब्ज की जाती है तो इस शान से उसको ले जाते भी और लाते भी है, और जब जवाब बंदा दे देता है तो फिर उसे इस तकलीफ के साथ खतरे में छोड़ते भी है। इसके बरस जो गैर मोमिन है उनकी रूह की उसकी भी रूह निकाली जाती है, उसके फरिश्ते उसके लिए जो फरिश्ते अल्लाह भेजता है, फरिश्ते जो आते हैं वो काले चेहरे वाले आते हैं, कंबल लेके आते हैं, सारे फरिश्ते जो उसी शक्ल होते हैं, शक्ल के होते हैं। रूह आसानी से नहीं बल्कि खींच कर निकाली जाती है, बड़ी तकलीफ के साथ हम उसे उसी कंबल में लपेटा जाता है, बदबूदार उसको लेके जाते हैं। फरिश्ते पूछते ये कौन है, ये खबीस रूह किसकी है, इसकी बदबू आ रही है। आगे और बढ़ते हैं, मौला आला उसके आगे उसको इजाजत नहीं मिलती बल्कि आवाज दी जाती है कि उसे वापस ले जाओ, उसी जमीन पर जहां से इसे लेके आए हो कब्र में वापस लाई जाती है। उससे भी वही सवाल होते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, उस नबी के शख्स के बारे में क्या कहता था। हर सवाल के जवाब में हाँ ला ही कहता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। न रब के बारे में जवाब मिलता, न नबी के बारे में जवाब मिलता है, न दीन के बारे में जवाब मिलता है। हर जगह अल्लाह का जवाब आता है, आवाज आती है वहां से, ये झूठ बोल रहा है, इसको इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, जहन्नम की खिड़की खोल दो, गरम गरम हवाएं इसको आने दो। मेरे अजीजों, ये है ईमान और कुफ्र में फर्क। ईमान वाला जब जाता है तो उसे शान शौकत के साथ ले जाया जाता है, और बेईमान जब जाता है तो उसकी इस तरह से उसका क्या कहते हैं उसके साथ सलूक किया जाता है। मेरे कहने का मुद्दा ये है कि अगर हमने यहाँ पर अच्छे काम किए तो हमारी तकलीफ भी होगी, अच्छे काम किए तो इज्जत भी मिलेगी, अच्छे काम किए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम इकराम भी दिया जाएगा। एक बंदे को भी शान हदीस पाक में इस तरह से बयान की गई है, इसलिए कहा गया है इस दुनिया में ईमान के साथ अमल साले के साथ जब बंदा जिंदगी गुजारता है तो वो खुशी खुशी जाता है, लेकिन जिसके अमाल बुरे हो वो जाता है तो बड़े यानी यूं कहिए कि उसके पांव भारी हो जाते हैं। जिस तरह से एक चोर चोरी करने के बाद पकड़ाता है और फिर जब उसे पकड़ के लाया जाता है तो वो आसानी के साथ नहीं आता, हर कदम उसके भारी होते हैं, हर कदम पे उसकी कहते शर्मिंदगी उसको सताती है। एक मिसाल से आपको समझाता हूँ कि हम इस दुनिया से जाते हैं तो अच्छे और बुरे की क्या जाने की तकाजे होते हैं, अच्छे और बुरे की इस तरह से एक दोनों का सफर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसी शहर से एक ऐसा गरीब हर इंसान मुंबई का सफर करता है अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए, अपने घर वालों के लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। शहर छोड़ता है, मुंबई का सफर करता है और मुंबई में जाकर के मेहनत हो मजदूरी किया, खूब पैसा कमाया और वापस आने की बारी आ रही है। एक तो वो इंसान है जो अपनी इस तरह की छवि लेकर के मुंबई का सफर किया था, एक वो इंसान जिसने डकैती किया है, किसी के घर में डाका डाला है, चोरी किया है, वो भी मुंबई की तरफ चला जाता है, उसको पुलिस ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा है। बड़े दिनों के बाद पुलिस के हाथों को चढ़ गया, अब एक उसे भी लाया जा रहा है, एक वो गरीब इंसान जिसने अपने घर को सुधारने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए
वो भी वापस आ रहा है। आने वाले दोनों एक ही शहर में, जाने वाले एक ही शहर के थे, आने वाले एक ही शहर में आ रहे हैं। क्या दोनों का आना बराबर हो रहा होगा? क्या दोनों आ रहे होंगे तो एक ही तरह से आ रहे होंगे? ये जो गरीब इंसान था जाकर वहां पैसा दबाकर अमीर बन गया, अब उस जब वापस आ रहा है उसके हर कदम पे खुशी होगी, हर पल उसकी खुशी उसके सामने दिख रही होगी। वो तमन्ना क्या कहते हैं, हर पल एक नया प्लान कर रहा होगा, एक मंसूबा बना रहा होगा। मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, अब मैं जाकर अपने घर के हालात सुधार सकता हूँ, अपने घर के लाइफ स्टाइल बदल सकता हूँ, मैं लोगों के बीच में उठने बैठने के काबिल बन गया हूँ, मेरी भी कुछ शान शौकत होगी, मेरे भी मोहल्ले में कोई पहचान बन जाएगी, मैं भी ऐसी जिंदगी गुजारूंगा। हर कदम उसकी प्लानिंग हो रही होगी, मंसूबा बंदी के साथ आ रहा होगा, हर कदम पे खुशियां उसके सामने आ रही होगी। लेकिन वो इंसान जो डकैती करके गया था, जो चोरी करके गया था, जो अच्छा नाम कमा के नहीं गया था, वहां पकड़ा के जब वापस आ रहा है उसके हर कदम भारी हो रहे होंगे, शर्मिंदगी से अपने आप कहते हैं उसके हर पल से जिंदगी दिखाई दे रही होगी कि मैं अपने घर में जाकर के कैसा मुंह दिखाऊंगा, अपने शहर के लोगों को फेस कैसा करूंगा, अपने मोहल्ले और पड़ोस में कैसे लोगों को मैं फेस करूंगा। हर कदम उसके भारी हो रहे होंगे। मेरे दोस्तों, आने वाले दोनों आ रहे हैं, लेकिन एक खुशी और मसरत और शादमानी के साथ आ रहा है, और हर कदम उसके एक दूसरे के जो भारी हो रहे हैं और वो परेशानी का सामना कर रहा है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से इस दुनिया से जाने वाले जाते हैं। एक बड़ी इंसान जाता है जिसके सुबह भी अच्छी थी, जिसकी शाम भी अच्छी थी, जिसके दिन भी अच्छे गुजरे हैं, जिसकी रात भी अच्छी गुजरी है, जो सुबह की नमाज भी अदा किया है, जोहर की नमाज भी अदा करता रहा, असर और मगरिब भी पढ़ता रहा, इशा की नमाज भी जमात से अदा करता रहा, रात को सोया तो कहते हैं दुरूद पाक का विरद करते हुए सोया, सुबह को पढ़ते दुरूद पाक पढ़ता हुआ उठा। जिसकी जिंदगी ऐसी गुजर रही होगी, जिसको हाथ इसके अच्छे भरे होंगे, जब वो जाएगा मेरे दोस्तों, वो परेशानी के साथ नहीं जा रहा होगा, वो शर्मिंदगी के साथ नहीं जा रहा होगा, बल्कि उसको खुशी होगी कि मैंने दुनिया में वो काम किए हैं जो अल्लाह को मंजूर था, मैंने दुनिया में वो काम किए हैं जिससे रसूल जिसको चाहते थे, मैंने दुनिया में वो काम किए हैं जिसका हुक्म मुझे खुदा ने दिया था, जिसको मुस्तफा ने मुझे बताया था, मैंने वो काम किए हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा बंदा जब कर रहा होगा तो मुझे बताओ, क्या वो शर्मिंदगी के साथ कर रहा होगा, क्या परेशानी के साथ कर रहा होगा, क्या वो अपने चेहरे पर बस जिंदगी का निशान लेके जा रहा होगा? नहीं नहीं, बल्कि वो खुशियों के साथ जा रहा होगा, इसलिए कि उसने काम अच्छे किया है, उसने अच्छी जिंदगी गुजारी है, उसने हमारे सालिहा किया है, उसने नेक काम किए हैं, अपने नेकियों के साथ जा रहा है, अच्छाइयों के साथ जा रहा है। वो जब कब्र में जा रहा है तो खुशी के साथ जा रहा है, इसलिए कि कब्र में जा रहा है कोई और नहीं आएगा। उसने इसमें मस्जिद में सुना था इमाम साहब से कि कब्र में कोई और नहीं आता है, कब्र में भाई आता है, कब्र में बाप आता है, कब्र में पड़ोसी आता है, कब्र में कोई दोस्त अहबाब आते हैं, कब्र में कोई और अमीर आता है, कब्र में कोई और हमारा वफार आता है दुनिया का, बल्कि कब्र में कोई आते हैं तो वही आते हैं जो बनी आखिर समा है, जो सैयदुल अंबिया है, जो तालिबान रसूल है, जो सैयदुल रसूल है, वही आते हैं। जो बंदा जा रहा होगा कब्र के सवालों के साथ, ये भी वो सोच रहा होगा कि मैंने जिनको देखने के लिए सारी जिंदगी उम्मीद में गुजार दी है, एक रात को कोई ख्वाब में नजर आ जाते, कोई रात ऐसी गुजर जाती, कोई शब ऐसी गुजर जाती कि जिस समय मुझे आका का दीदार हो जाता, कोई रात ऐसी गुजर गई होती जिस रात में आका का दीदार कर लिया होता। लेकिन इसी तमन्ना के साथ गया है, न कोई ऐसी रात गुजरी जिसमें दीदार हुआ है, न कोई ऐसी शब गई जिसने नबी को देखा है। अब जा रहा है तो कब्र में जा रहा है, यानी कब्र उसके लिए जिंदगी को तमाम तमन्नाओं ख्वाहिशातों को पूरी करने वाली है कि जहां पे कोई और नहीं दिखेगा। अगर किसी का चेहरे ज़ेबा दिखेगा तो मदनी का चेहरे ज़ेबा होगा, उस मुलज़िम का चेहरे ज़ेबा होगा। मेरे दोस्तों, एक सुन्नी सैयदी मुसलमान जिसकी सुबह और सुबह में सलाम जो पढ़ता रहा हो, मस्जिदों में सलाम पढ़ता रहा हो, तकारीब में सलाम पढ़ता रहा हो, नाथानी करता रहा हो, जब वो जा रहा होगा मेरे दोस्तों कब्र में और कौन दिखाए जाते हैं? आका किसके वही जगह को दिखाया जाता है, उसी खुशी के साथ जा रहा होगा कि कोई और नहीं दिखेंगे, बल्कि दिखेंगे तो कौन? जो नबियों के ताजदार है, तो मुझे दिखाई देंगे। उस सवालों का जवाब भी दे पाएगा। मेरे अजीजों,
समय ये फायदा मिलता है कि कब्र में जहाँ कोई नहीं आता, सुनते लोग चाहते हैं, अगर कोई दिख गया तो क्या जवाब देंगे। इसलिए मेरे अजीजों इस मिसाल से तो समझो कि अगर कोई आपके महफिल में ऐसा बंदा आ जाए जिसको आप न पहचानते हो न जानते हो, या आप यूं समझे इसको कि कारी महफूज साहब का खुलिया है, कारी महफूज साहब का लिबास है, कारी महफूज साहब का एक तरीका है इनकी जिंदगी गुजारने का। अब अगर ये महफूज से जा करके बिलासपुर पहुंच रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, इनके हुलिया के एतबार से अगर इन्हें कोई न देखने वाला पहचानना चाहेगा हो तो कैसा पहचानेगा, यानी जिसने कभी न देखा हो। आप उसको सही हुलिया बता दो ना तो जब तुम्हें पहुंचते ही पहचान लेगा। यानी ये कुर्ता पहनते हैं, बताओ ये कुर्ता पहनते हैं, ये अली में पैजामा पहनते हैं, बताओ अली में पैजामा पहनते हैं, ये बरकाती टोपी लगाते हैं, बताओ बरकाती टोपी लगाते हैं, ये आंखों पे चश्मा लगाते हैं, बताओ चश्मा लगाते हैं। एक मुकम्मल हुलिया आपने बताया है, एक न देखने वाले इंसान आपने बताया, आपने पूरा हुलिया बता दिया। वो देखते बगैर देखे हुए जैसे ये पहुंचेंगे फौरन को पहचान लेगा कि मुझे जो बताया गया था ये वही है। लेकिन अगर मैं यही को और इनका हुलिया गलत बता दूं, अगर ये कुर्ता पैजामा मलबूस होते हो, कुर्ता पैजामा इनका लिबास हो, अगर मैं इनको पहना दूं, ये पैंट पहनते हैं, ये शर्ट पहनते हैं, सर पे टोपी लगाते हैं, मैं बता दूं कि बगैर टोपी के रहते हैं, नाम वही है, चेहरा वही है, लेकिन मैंने हुलिया गलत बताया है। वो देखने वाला इनको पहचानेगा नहीं, अगर जैसा तो वही है, लेकिन हुलिया गलत बताया है, इसलिए वो पहचानने से मजबूर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हम में और दूसरे अकीदे वालों में फर्क यही है कि हम किसी और को नहीं बताते, हम वही बताते हैं जो कब्र में आते हैं, जिन्हें कब्र में दिखाया जाता है। वो क्या बताते हैं कि कब्र में कोई नहीं आता। मेरे अजीजों, बताओ कितना बड़ा फर्क है कि उनका सुनने वाला सुन के जब जाता है कैसे जवाब दे पाएगा। चेहरा किसी और का नहीं दिखता है, रसूल अल्लाह का चेहरा दिखाया जाता है। कब्र में कोई और नहीं आता, रसूल परवरदिगार कहते हैं, हबीब परवरदिगार आते हैं। मेरे दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं चेहरा दिखाया जाता है। हमारे सुन्नत व जमात का बताने का तरीका ये है कि चेहरा भी दिखाया जाता है, सरकार कदम रंजा भी फरमाते हैं, कदम रंजा भी फरमाते हैं, जिसके कब्र में चाहे तशरीफ ले आए, ये उनकी मर्जी है मेरे दोस्तों। लेकिन पूछा उन्हीं के बारे में जाता है, किसी और के बारे में सवाल नहीं होता है। इन महफिलों से फायदा ये होता है कि हमारी महफिलों में सरवरे कौन मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा होता है। जो कब्र में जहाँ कोई सर नहीं देगा, जहाँ कोई सुबहान भर के नहीं आता, वहाँ अली के परवरदिगार आते हैं। सुभान अल्लाह। को पहचान लिया तो बेड़ा पार हो गया। बेशक दुनिया के सवालात होते हैं, दुनिया की स्कूलों के सवालात तैयार किए जाते हैं और नंबर दिए जाते हैं। 100 नंबर का सवाल है, अगर 100 नंबर का सवाल है, अगर नंबर मिल गया तो बंदा पास हो जाता है। 33 नंबर मिल गया, 100 में से बंदा पास कर दिया जाता है। अब देखिए 3 ही सवाल हैं, अगर 3 सवालों में 2 का जवाब दे दिया तो बंदा पास होगा। बताओ बंदा पास होगा क्या? आपको जो मालूम है कि 3 सवाल है, मर्दों का चेहरा कौन है, मादियों के चेहरा दीन क्या है, ये 2 सवाल हैं। दोनों का जवाब बंदा ने दे दिया, रब के बारे में बता दे, रब मेरा अल्लाह है, दीन बता दे, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा और आखिरी सवाल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि मां कुल तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो शाम वाले बंदे के बारे में तुम क्या कहते थे, तुम क्या कहते थे? पता ये चला कि आखिरी सवाल जो है, यही दोनों सवाल के जवाब का दारोमदार इसी सवाल पर है। अगर ये तीसरा सवाल किसी बंदे से नहीं बनता और 2 सवाल बन गए तो उसको निजात नहीं मिलने वाली है। मैं अर्ज करता हूँ, ऐसा क्यों? जब 2 सवालों का जवाब दे दिया तो निजात मिलनी चाहिए, इसलिए कि उसने अपने खालिक को पहचान लिया, अपने रब को पहचान लिया। जिसने पैदा किया उसे बता दिया, जिसने जिंदगी दी उसे बता दिया, जिसने रिज़्क़ दिया उसे बता दिया, जिसने जिंदगी पर खाना खिलाया उसे बता दिया, रब को बता दिया। और जिस दीन पर पैदा किया था, जो पसंदीदा दीन खुदा का है, उस दीन के बारे में बता दिया। अब तो उसको निजात मिलनी चाहिए थी ना, कि अपने रब को पहचान लिया, अपने खालिक को पहचान लिया, अपने मालिक को पहचान लिया, अपने रिज़्क़ देने वाले को पहचान लिया। और जिस दीन पर पैदा यानी जिस दीन पर पैदा किया था उस दीन के बारे में बता दिया, जो खुदा का पसंदीदा दीन है उस दीन के बारे में बता दिया। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर जवाब नहीं दे पाया, तो यहाँ तो 2 सवालों का जवाब बन गया है। निजात मिलनी चाहिए,
चाहिए। और अगर इसको यानी रसूल कौनैन के ऐलान के बाद तुमने जिस खुदा को पहचानने वाले को नहीं जाना, तो फिर खुदा ने भी ये बता दिया कि तुम्हें निजात नहीं मिल सकती है जब तक कि तुम उस नबी को न पहचानो जिस नबी ने तुम्हें मुझे पहचानवाया है। मेरे असीसों, एहसान का बदला एहसान ही होता है ना। तुम्हें एहसान के ऊपर एहसान दिया है नबी ने, तुम्हें दीन ला करके दिया है, तुम्हें रब की शनाख्त करवाई, तुम्हें रब को पहचानवाया, एक खुदा के सामने झुकाया, एक माबूद को बनवाया, तुमने उसके रसूल को नहीं पहचाना, इसलिए तुम्हें दोनों सवालों के जवाब देने के बावजूद तुम्हें निजात नहीं मिलेगी, तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी जिंदगी गुजारने का तौफीक अता फरमाए, बेहतर से बेहतर काम करने के तौफीक अता फरमाए। और ऐसा अटल फैसला है जिससे किसी को छुटकारा नहीं है, कोई न बचा है न कोई बचेगा, न कोई इससे छुटकारा पाया है न पाएगा। मौत से किसको मुस्तकारी है, आज वो कल हमारी बारी है। इस दुनिया से सब को जाना है, इस दुनिया में किसी को करार नहीं, इस दुनिया में किसी को दबाव नहीं, इस दुनिया में किसी को पायदारी नहीं है। हर बंदा इस दुनिया से जाने वाला है, हर जान को मौत का मजा चखना है, तो मौत का मजा चखना है। और आए दिन हम देखते रहते हैं, अपने कदमों को उठा के चलते रहते हैं, कब्र में हम जाके दफनाते रहते हैं। रोया हर रोज का ये मामला है, हर रोज का लोगों को ये जाना आना लगा हुआ है। इससे बंदे को सबक हासिल करना चाहिए कि आप जाने वाला चला गया है, लेकिन हमें मैसेज दे गया, हमें सबक दे गया है। बंदे की जिंदगी अभी है, वो अच्छा काम कर सकता है। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरे आमाल का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी सांसें बाकी है, तुम्हारी अभी आंखें काम कर रही है, तुम्हारा अभी कदम, तुम्हारे पैर काम कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ काम कर रहे हैं। अभी तुम मस्जिदों में कदम बढ़ा सकते हो, अपने हाथों में कुरान ले सकते हो, अपने आंखों से कुरान देख सकते हो। अभी ज़बान पे जारी, ज़बान तुम्हारी जारी है, तुम अपने ज़बान से कलाम पाक की तिलावत कर सकते हो, तस्बीह व तहमीद बयान कर सकते हो। अभी तुम्हें मौका है, मैं चला गया, तुमने मुझे कंधे उठाकर लेके कब्र में डाल दिया है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, तुम रह जाने वाले हो, तुम्हारे पास मौका, अभी मौके का फायदा उठा लो। हर जाने वाला ये सबक लेके जाता है, और हम उससे काफिल हैं कि हमने छोड़ दिया, कब्र में उतार दिया, अपनी जिंदगी जैसी पुरानी थी वैसी जीने लगे। लेकिन मेरे दोस्तों, हर जाने वाला सबक लेके जाता है। ऐ जीने वाले, अभी तेरे पास मौका है, मौके का फायदा उठा ले, वक्त है, वक्त का फायदा उठा ले। और भी कहते हैं, आए बाकी हो गया जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार करते हैं, यानी जहाँ पे आपने डाल के आए वो जगह कैसी जगह है, वहाँ पे एयर कंडीशन है, तो वहाँ पे रोशनी है, तो वहाँ पे लाइट है, तो वहाँ पर और कोई इंतजाम है। अगर वहाँ पे कोई आता है, हाँ, उस हदीस के मौके में एक बात ये भी है कि जब सवाल का जवाब फरिश्तों को दे दिया जाता है, एक शख्स आता है उस बंदे के पास, यानी कब्र में वो आता है, एक शख्स आता है और खूबसूरत चेहरे से आता है और उसको शाबाशियां देता है। ये बंदा पूछता है, तू कौन है? तू कौन है? वो कहता है, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तेरा अच्छा अमल हूँ, मैं तेरा अच्छा अमल हूँ। यानी अमल हमारा कब्र में साथ देता है, हमारे अमाल ही कब्र में साथी बनते हैं। इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूँ, जो अमाल दिखते हैं वो कब्र में साथी नहीं बनते हैं, जो अमाल दिखते हैं वो कब्र में साथी नहीं बनते, जो नहीं दिखते हैं वो साथी बनते हैं। न दिखने वाली चीजें कौन है? वो अमल है जिनको हमने रात के तन्हाई में किया है, हमने अंधेरी रात में किया है, हमने गोशे की तन्हाई में किया है, हमने बगैर किसी को दिखाए किया है। वो सदक़ात हैं जो बगैर रिया के किए गए हैं, वो अतियात हैं जो बगैर किसी दिखावे के किए गए हैं। जब हम ये काम कर जाते हैं तो ये कब्र में हमारे पुलिस बनते हैं, हमारे गमखार बनते हैं, हमारे साथी बनते हैं, हमें तसल्ली देते हैं। मेरे दोस्तों, अमल वो करो जो कब्र का साथी बन जाए, उनसे बात करो जो हमें कब्र में अज़ाब के बाइस बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। मौत से किसको मुस्तकारी है? आज वो कल हमारी बारी है। मौत तकदीर मज़ाक़ ज़िंदगी का नाम है, खाक के पर्दे में बेजाने का एक पैगाम है। मर्द टूटा है कहीं, सिलसिला कैद ब्याज, फर्क इतना है ज़मीन बदल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम अब्दुल करीम खान साहब को की मग़फ़िरत फरमाए, उनके क़ब्र में रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए, आमीन।